سیکھیں ہم دین، ہم دین، ہم اور آپ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت موجود ہیں کراچی کے ایک علاقے گلستان جوہر کے ایک جامعۃ المدینہ میں موجود ہیں، جس کا نام ہے فیضان عثمان غنی۔ یہاں سے آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ اس میں ایک سیگمنٹ ہے مقابلہ۔ مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں۔ ہم کتابیں پڑھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں، ہم مدنی چینل دیکھ کر بھی علم دین حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ انہیں ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم اور آپ مقابلے کی طرف بڑھیں اس سے پہلے ہمارے ساتھ ایک اسلامی بھائی ہیں اور ہم تلاوت سنتے ہیں۔ آئیے ہم اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، مبلغ دعوت اسلامی بنائے، عالم دین بنائے، مفتی دعوت اسلامی بنائے۔ ہمارے ساتھ ایک اور اسلامی بھائی ہیں، ابھی ہم کلام سنتے ہیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ نظر بس سے محفوظ فرمائے، حاسدین کے حسد سے بچائے، بد نظروں کی بد نظری سے بچائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھیں۔ ہم اور آپ علم
کے فضائل بیان کی جائیں گے. ہمارے حاضرین میں سے 2 کنٹیسٹنٹس کے درمیان مقابلہ ہوگا. ان کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیے گا کہ کیا نام ہے اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. میرا نام عبید رضا ہے اور میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں. جی جناب, ہمارے ساتھ عبید رضا ہیں. ایک اور اسٹوڈنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے نام پوچھتے ہیں اور کون سے درجے میں پڑھتے ہیں. میرا نام محمد عباد ہے اور میں سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوں. جی ہمارے ساتھ عبید ہیں, عباد ہیں, ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. علم کے فضائل بیان کی جائیں گے. بے شک علم کی طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, علم میری اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی میراث ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص طلب علم کے لیے گھر سے نکلا تو جب تک واپس نہ ہو اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. عالم کی 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. علم انسان کو بلندی پر لے جاتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے. علم دین حاصل کرنے والوں کو بخش دیا جاتا ہے. جو شخص قدم اٹھائے تاکہ وہ علم سیکھے تو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے. ایک گھڑی علم کی طلب و تلاش کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے, اور ایک دن علم کی تلاش و طلب کرنا 3 ماہ کے روزوں سے بہتر ہے. علم دل اور دماغ کو جہالت کے گہرے اندھیروں اور گہرائیوں سے نکال دیتا ہے. علم تنہائی میں مونس, سفر میں رفیق اور خلوت میں ساتھی ہے. علم ہی دراصل ایک انسان کو انسانی صلاحیتوں سے نوازتا ہے. علم حسد و بغض, دشمنی اور لالچ سے نجات دلاتا ہے. علم کی بدولت انسان کی چشم بصیرت روشن ہو جاتی ہے, جس کی بدولت اس میں نیکی و بدی اور حق و باطل کا شعور پیدا ہوتا ہے. علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. ہمارے ساتھ عبید بھائی اور عباد ہیں, آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں. جی عبید بھائی. علم طلب کرنے والے کے لیے ہر چیز استغفار کرتی ہے. سبحان اللہ. جی عباد. ایک گھڑی علم کی طلب و تلاش کرنا پوری رات قیام کرنے سے بہتر ہے, اور ایک دن علم کی طلب و تلاش کرنا 3 ماہ کے روزے رکھنے سے بہتر ہے. سبحان اللہ. جی عبید. آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, علم میری اور مجھ سے پہلے والے انبیاء کی میراث ہے. سبحان اللہ. جی. علم دل اور دماغ کو جہالت کے گہرے اندھیروں اور گہرائیوں سے نکال دیتا ہے. سبحان اللہ. علم طلب کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سبحان اللہ. علم دین حاصل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے. جی. علم حسد, بغض, لالچ اور دشمنی سے نجات دلاتا ہے. سبحان اللہ. جو شخص قدم اٹھائے تاکہ وہ علم حاصل کرے تو اس کے قدم کے اٹھنے سے پہلے اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. جی. علم کی بدولت انسان کی چشم بصیرت روشن ہو جاتی ہے, جس کی بدولت وہ نیکی اور بدی اور حق اور باطل کا شعور پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ. جی ہمارے ساتھ عبید اور عباد موجود ہیں. ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہو رہا ہے. دونوں کا ایک پوائنٹ باقی ہے. دیکھتے ہیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. جی. عالم کی 2 رکعت نماز پڑھنا غیر عالم کی 70 رکعت نماز پڑھنے سے افضل ہے. سبحان اللہ. علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. علماء کے ساتھ بیٹھنا بھی عبادت ہے. ہمارے ساتھ عباد اور عبید موجود ہیں. یہ دونوں بہت اچھے انداز سے مقابلہ جیت چکے ہیں. ہمارے ساتھ عباد اور عبید ہیں. ان دونوں کو تحفے دیے جا رہے ہیں. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے, ایک عطر دی جا رہی ہے, ایک تسبیح, ایک مسواک اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. جی ہمارے ساتھ عباد بھی ہیں. عباد کو بھی تحفے دیے جا رہے ہیں. ایک رسالہ دیا جا رہا ہے, کامیاب طالب علم, اور ایک مسواک, ایک عطر, ایک تسبیح اور ایک تحفہ دیا جا رہا ہے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھیں. اس وقت موجود ہیں گلستان جوہر کے ایک جامعۃ المدینہ. بتایا جاتا ہے کہ 235 طلباء کرام پڑھتے ہیں. اس جامعہ کے ناظم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں, معلوم کرتے ہیں کہ جامعۃ المدینہ ہے کیا. الحمدللہ دعوت اسلامی کے 80 سے زائد شعبہ جات ہیں. اس میں ایک شعبہ ہے جامعۃ المدینہ. جامعۃ المدینہ ہے کیا, کتنے طلباء کرام پڑھتے ہیں, ملک اور بیرون ملک میں کتنے جامعات ہیں, کتنے اساتذہ کرام پڑھانے والے ہیں, کتنے طلباء کرام پڑھنے والے ہیں. آئیے ہم اپنے ناظم صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. الحمدللہ دعوت اسلامی جہاں دنیا بھر کے اندر 80 سے زائد شعبہ جات کے اندر دین متین کا کام کر رہی ہے,
वहीं एक दावत इस्लामी का अहम तरीन शोबा जामिअतुल मदीना है। जामिअतुल मदीना की अगर तादाद की बात की जाए तो दुनिया भर के अंदर जामिअतुल मदीना की तादाद 1309 है। और अगर हम इनके अंदर पढ़ने वाले तलबा व तालिबात की बात करते हैं, स्टूडेंट्स की बात करते हैं, तो इनकी तादाद 1,17,403 है। और इन जामिअतुल मदीना के अंदर जो पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम हैं, जो टीचर्स हैं, इनकी अगर तादाद हम चेक करते हैं तो वो 10,000 से ज़ायद है। इसी तरह इस जामिअतुल मदीना से जो फ़ारिग व तहसील हो के इल्म दीन हासिल करके आलिम बन के आलिम की डिग्री हासिल करके दुनिया भर के अंदर दीन मतीन का जो काम कर रहे हैं, उनकी तादाद अगर हम चेक करते हैं तो वो 16,171 है। और जिस जामिअतुल मदीना के अंदर अब ये सिलसिला हो रहा है, हम और आप मदनी चैनल के साथ, ये कराची का अव्वलीन, बल्कि यूँ समझे कि दावत इस्लामी का पहला जामिअतुल मदीना है। और इस जामिअतुल मदीना फैज़ान उस्मान गनी को 25 साल हो चुके हैं। यहाँ से भी अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों की तादाद में इस्लामी भाई इल्म दीन हासिल करके फ़ारिग हो चुके हैं और दुनिया भर के अंदर दीन मतीन का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह, अल्लाह नजर बस से महफूज फरमाए। मदनी चैनल के नाजरीन, आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। मरीज की इयादत के फजाइल बयान किए जाएंगे। हमारे हाजरीन में से 2 कंटेस्टेंट्स के दरमियान मुकाबला होगा। इनकी तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और कौन से दर्जे में पढ़ते हैं। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को बताइएगा कि क्या नाम है और कौन से दर्जे में पढ़ते हैं। मेरा नाम महबूब आलम है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ। जी, हमारे साथ महबूब हैं। एक और स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं और कौन से दर्जे में पढ़ते हैं। मेरा नाम अहमद तलहा है। जी, हमारे साथ महबूब और तला मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। मरीज की इयादत के फजाइल बयान किए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स किसी मरीज की इयादत करे तो वो जन्नत के बहर रहमत में गोते लगाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स किसी मरीज के पास उसकी इयादत के लिए बैठेगा तो उसे रहमत ढांप लेगी। अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब की इयादत के साथ साथ पड़ोसियों की भी इयादत करना सुन्नत से साबित है। अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम हो तो तालिफ़े क़ल्ब और ईमान की तरफ रागिब करने की नीयत से इसकी इयादत को भी जाना चाहिए। इयादत के लिए मरीज के पास जाएं तो इससे ये कहें, फिक्र ना करो, मर्ज और गुनाहों से पाक हो जाओगे। मरीज को यूं दुआ देना सुन्नत है कि ए लोगों के परवरदिगार, उसकी तकलीफ को दूर फरमा दे, तू ही शिफा देने वाला है, तेरे ही दस्ते कुदरत में है, ऐसी शिफा की बीमारी का असर ज़ाइल कर दे। मरीज की इयादत में इसे तकलीफ पर सब्र की तलकीन कीजिए। अगर याद हो तो ऐसी अहदीस सुनाइए जिनमें ये जिक्र है कि बीमारी गुनाहों का कफ़ारा है। एक अहम बात यह है कि इयादत में इतनी देर ना बैठा जाए कि मरीज या इसके अहले खाना तंग हो जाएं। मरीज से खुद अपने लिए दुआ करवाना सुन्नत से साबित है, क्योंकि मरीज की दुआ मलाइका की दुआ की तरह कबूल होती है। हमारे साथ महबूब और तला मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। आइए हम मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। जी महबूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी मरीज़ की इयादत करेगा तो वो जन्नत में बहर रहमत में गोते लगाएगा। सुभान अल्लाह। जी तला। इयादत के लिए मरीज के पास जाएं तो उससे ये कहें, फिक्र ना करो, मर्ज और गुनाहों से पाक हो जाओगे। सुभान अल्लाह। जी महबूब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मरीज़ के पास उसकी इयादत के लिए बैठेगा तो उसे रहमत ढांप लेगी। सुभान अल्लाह। जी तला। मरीज को यूं दुआ देना सुन्नत है कि ए लोगों के परवरदिगार, तू इसकी तकलीफ को दूर फरमा, क्यों तू शिफा देने वाला है, तेरे ही दस्ते कुदरत में ऐसी शिफा है कि बीमारी का असर ज़ाइल कर दे। सुभान अल्लाह। जी। अपने रिश्तेदारों, दोस्त, अहबाब की इयादत के साथ साथ अपने पड़ोसियों की भी इयादत करना सुन्नत से साबित है। सुभान अल्लाह। जी। एक अहम बात यह है कि इयादत में इतनी देर ना बैठा जाए कि मरीज या उसके अहले खाना तंग हो जाएं। सुभान अल्लाह। जी, हमारे साथ तला और महबूब मौजूद हैं। दोनों का एक एक पॉइंट बाकी है। देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। जी। अगर पड़ोसी गैर मुस्लिम हो तो तालीफ क़ल्ब और ईमान की तरफ राग़िब करने की नीयत से उसकी इयादत भी करनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जी तला।
मरीज से खुद दुआ करवाना सुन्नत से साबित है, क्योंकि मरीज की दुआ मलाइका की दुआ की तरह कबूल होती है। मरीज से खुद अपने लिए दुआ करवाना सुन्नत से साबित है, क्योंकि मरीज की दुआ मलाइका की दुआ की तरह कबूल होती है। हमारे साथ महबूब और तला मौजूद हैं। ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी, हमारे साथ महबूब और तला हैं और दोनों को तोहफे दिए जा रहे हैं। हमारे महबूब भाई को एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह दी जा रही है, एक इतर, एक मिसवाक और एक तोहफा दिया जा रहा है। माशाल्लाह। हमारे साथ हमारे तलहा मौजूद हैं, इनको भी एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह, एक मिसवाक, एक इतर और एक तोहफा दिया जा रहा है। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम एक और राउंड की तरफ बढ़ें। हम मुकाबले की तरफ बढ़ें, इससे पहले हमारे साथ तलबाए कराम हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। दरस निज़ामी कर रहे हैं, अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करते हैं, आइए हम स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ते हैं। जी हुजूर। गुनाहों से नफ़रत नसीब हुई है, नेकियों पर इस्तिकामत मिलती है, सबसे बढ़कर ये है कि फ़राइज़ की पाबंदी नसीब हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना के अंदर दाखिला लेने के बाद ही हमें पता चला कि क्या चीज़ हराम है और क्या चीज़ हलाल है। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने को मिली। उलमा इकराम की ज़ियारत करना भी सवाब है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिअतुल मदीना के अंदर पढ़ते हुए हम हर रोज़ अपने उस्ताद इकराम उलमा इकराम को देखते हैं और हम इस सवाब से नवाजे जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। दरस निज़ामी कर रहे हैं, अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करते हैं बेटा? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले कुछ ऐसा पता नहीं था कि माहौल कैसा होता है, और ये भी सुन्नत का ही पता नहीं था। माशाल्लाह से जामिअतुल मदीना में जब से दाखिला लिया है तो माशाल्लाह से इन सब का इल्म हासिल हुआ है, और सुन्नत आदाब का भी हमें पता चला है कि क्या सुन्नतें होती है, क्या आदाब होते हैं। एक और स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं, इनसे मालूम करते हैं कि आलिम कोर्स कर रहे हैं, अपने अंदर क्या तब्दीली महसूस करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि जब बंदा जामिया से दूर होता है, एक इल्म की मजलिस से दूर होता है, तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजार रहा होता है। लेकिन जब बंदा इल्म दीन से वाबस्ता हो जाता है, इल्म की मजलिस से वाबस्ता होता है, तो उसकी ज़िंदगी का पूरा रोल तब्दील हो जाता है, वो बंदा ख़ुद तब्दील हो जाता है। अभी हम जामिअतुल मदीना में आए तो मैं सही बता रहा हूँ आपको, पहले मुझे जनाजे को कंधा देना नहीं आता था। जनाजे को कंधा किस तरह दिया जाता है, ये हम सबक पढ़ रहे थे, उसके अंदर उस्ताद साहब ने बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताया, तो फिर मुझे समझ आया कि जनाजे को कंधा इस तरह दिया जाता है। मैयत को गुस्ल किस तरह दिया जाता है, ये हमारे जामिअतुल मदीना में इस चीज़ कोर्स करवाया गया, इस बारे में बताया गया। चूँकि और अभी तलबा ने यहाँ पे अपने कमेंट्स दिए, तो उन्होंने बताया कि हम नमाज की तरगीब मिली, हमें वज़ू सही तरीके से करना आया। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इसके साथ साथ हमें यहाँ पर नमाज जनाजा के बारे में बताया जाता है, मैयत के बारे में बताया जाता है। यार, जब आप मर जाते हैं तो फिर जो मरा हुआ है तो उसको कंधा कैसे देना है, उसको गुस्ल कैसे देना है, उसको दफनाना कैसे है। इसी तरह जब बंदा जामिअतुल मदीना से वाबस्ता होता है तो इल्म दीन हासिल करने के साथ साथ उसको ये तरीका भी आता है कि उसने बाहर लोगों में दीन का काम कैसे करना है, उसने तंजीम के साथ वाबस्ता कैसे रहना है, उसने नेकी की दावत कैसे देनी है, किस अंदाज से उसने लोगों को लेकर चलना है, तो वो दुनिया और आखिरत के अंदर अपनी कामयाबी का सामान कर सकता है। जी, हमारे साथ एक स्टूडेंट के वालिद भी हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। आपने अपने बच्चों को क्यों दाखिला करवाया जामिअतुल मदीना में? मैंने अपने बच्चे को इसलिए दाखिल करवाया ताकि ये ज़िंदगी भर अपने दीन की राह में गामज़न रह सके। सबसे पैदा हुआ तभी मेरी नीयत थी कि तायात इसको मैं दीन की राह में लगा सकूं, और इसके लिए सबसे बेहतरीन माहौल में दावत इस्लामी का पाया। और चूँकि हम लोग पहले से ही फैमिली माहौल हमारा दावत इस्लाम में रह चुके हैं हम लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपकी काविशें कबूल फरमाए। हमारे साथ उस्ताद साहिब मौजूद हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। हुजूर खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। हमारे मदनी चैनल के नाजरीन को अगर कोई पैगाम देना चाहें। मदनी चैनल के नाजरीन के लिए मेरा ये पैगाम है कि जिस तरह अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हर ख़ानदान के लिए एक फैमिली डॉक्टर का होना ज़रूरी है, इसी तरह साथ में अमीर अहले सुन्नत ये भी फरमाते हैं कि हर घर के अंदर एक आलिम का होना भी ज़रूरी है। अब आप देखें जिस तरह कि एक अगर फैमिली डॉक्टर होगा तो वो इलाज करता है बंदे के जिस्म का, जिस्मानी वो इलाज करता है। इसी तरह अगर एक घर के अंदर एक आलिम दीन होगा तो वो आपके जिस्म का नहीं बल्कि आपके रूहानी तौर पर आपके इलाज करेगा। तो इसी वजह से अमीर आले सुन्नत की भी यही सोच है, आप फरमाते हैं कि हर घर के अंदर एक आलिम दीन का होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह दावत इस्लामी को नजर बद से महफूज फरमाए। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम एक आखिरी राउंड की तरफ बढ़ते हैं।
तहज्जुद के फ़ज़ाइल बयान किए जाएंगे। हमारे हाज़रीन में से 2 कंटेस्टेंट्स यानी 2 स्टूडेंट के दरमियान मुकाबला होगा। इनकी तरफ बढ़ते हैं और कौन से दर्जे में पढ़ते हैं। हमारे मदरी चैनल के नाज़रीन को बताइएगा कि क्या नाम है और कौन से दर्जे में पढ़ते हैं। मेरा नाम मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन बिन मोहम्मद हफीज़ अतारी है और मैं सेकंड ईयर का तालिब इल्म हूँ। जी, सानिया में पढ़ते हैं ज़ैनुल आबिदीन। एक और स्टूडेंट की तरफ बढ़ते हैं, इनसे नाम पूछते हैं। मेरा नाम सैयद अवैस शाह है और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ उद्दजा उल आरिफ। जी, उला में पढ़ते हैं। उवैस रज़ा हमारे साथ हैं, ज़ैनुल आबिदीन हैं। तहज्जुद के फ़ज़ाइल बयान की जाएंगे। इन दोनों के दरमियान मुकाबला होगा। तहज्जुद वो नमाज है जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत के हक़ में नफली इबादत है। इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमान नमाज तहज्जुद बाकायदगी से अदा किया करते थे। अगर नमाज रह जाती तो इतने परेशान होते कि यहाँ तक के बीमार पड़ जाते। तहज्जुद की नमाज अंबिया अलैहिमुस्सलाम की सुन्नत है। अल्लाह ने क़ियामुल लैल करने वाले के ईमान कामिल की गवाही दी है। तहज्जुद का वक्त रहमत व मग़फ़िरत का वक्त है। तहज्जुद बंदे के गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और गुनाहों को मिटा देती है। तहज्जुद जिस्म से बीमारी को दूर करती है। तहज्जुद के वक्त उठने से दिमागी क़ुव्वतों को भी तक़वियत मिलती है। तहज्जुद तौबा की कबूलियत का बेहतरीन वक्त है। तहज्जुद की नमाज में कम अज़ कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात पढ़ना सुन्नत है। अपने घर में तहज्जुद पढ़ना मुस्तहब है। हमारे साथ उवैस और ज़ैनुल आबिदीन हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। जी, स्टार्ट करें। तहज्जुद वो नमाज है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ थी, लेकिन आपकी उम्मत के हक़ में यह नफली इबादत है। सुभान अल्लाह। जी, उवैस। तहज्जुद बंदे के गुनाहों का कफ़ारा हो जाती है और गुनाहों को मिटा देती है। सुभान अल्लाह। हज़रत इमाम जलालुद्दीन सयूती अलैहि रहमतुर रिदवान तहज्जुद बाकायदगी से अदा करते थे। अगर आपकी कभी नमाज तहज्जुद रह जाती तो इतने परेशान होते कि सख्त बीमार पड़ जाते। सुभान अल्लाह। तहज्जुद जिस्म से बीमारी को दूर करती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने क़ियामुल लैल करने वालों के ईमान की गवाही दी है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद के वक्त उठने से दिमाग की क़ुव्वतों को भी तक़वियत हासिल होती है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद फरिश्तों की दोस्ती का बाइस है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद की नमाज में कम से कम 2 रकात पढ़ना और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात पढ़ना मुस्तहब है। सुभान अल्लाह। जी, हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन और उवैस मौजूद हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा है। एक पॉइंट बाकी है, देखते हैं कि वो क्या जवाब देते हैं। जी, तहज्जुद का वक्त रहमत का वक्त है। सुभान अल्लाह। तहज्जुद का वक्त रहमत व मग़फ़िरत का वक्त है। आखिरी पॉइंट बाकी है, उवैस की तरफ बढ़ते हैं, क्या जवाब देते हैं। जी, तहज्जुद अपने घर में अदा करना मुस्तहब है। सुभान अल्लाह। अपने घर में तहज्जुद पढ़ना मुस्तहब है। हमारे साथ ज़ैनुल आबिदीन हैं और उवैस हैं। ये दोनों बहुत अच्छे अंदाज से मुकाबला जीत चुके हैं। जी, हमारे साथ उवैस भाई ज़ैनुल आबिदीन हैं। इन दोनों के दरमियान मुकाबला हो रहा था और तोहफे दिए जा रहे हैं। एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह, एक इतर, एक मिसवाक और एक तोहफा दिया जा रहा है। हमारे साथ उवैस भी हैं, उवैस को भी तोहफे दिए जा रहे हैं। एक रिसाला दिया जा रहा है, एक तस्बीह, एक इतर, एक मिसवाक और एक तोहफा दिया जा रहा है। जी, सिलसिला आप देख रहे थे हम और आप मदनी चैनल के साथ। सिलसिले का नाम है हम और आप मदनी चैनल के साथ। जी, हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं। आइए हम मदनी कंप्यूटर की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं। हमारे होंगे सवालात, मदनी कंप्यूटर के होंगे जवाबात। अमीर अहले सुन्नत का मुकम्मल नाम क्या है? हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया। बानी दावत इस्लामी अमीर अहले सुन्नत की कुनियत बताएं। अबू बिलाल। अमीर अहले सुन्नत के दादा जान का नाम क्या था? आप दामत बरकातुहुल आलिया के दादा जान का नाम अब्दुर रहीम अलैहि रहमतुल करीम था। आपकी विलादत किस सन को हुई? हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रिज़वी दामत बरकातुहुल आलिया की विलादत 26 रमज़ान मुबारक सन 1369 हिजरी में बमुताबिक 1950 में हुई। किस शहर में विलादत हुई? पाकिस्तान के मशहूर शहर बाबुल मदीना कराची में हुई। अमीर अहले सुन्नत के वालिद का नाम क्या था? हाजी अब्दुर रहमान क़ादरी अलैहि रहमतुल हादी। अमीर अहले सुन्नत के वालिद हाजी अब्दुर रहमान का इंतकाल कब हुआ? ज़ुल्हिज्जतुल हराम के महीने सन 1370 के महीने में इस दुनिया से रुखसत हुआ। अमीर अहले सुन्नत के कितने भाई थे? अमीर अहले सुन्नत के एक ही भाई मोहतरम अब्दुल गनी साहब हैं। अमीर अहले सुन्नत की वालिदा का इंतकाल कब हुआ? 17 सफर मुज़फ़्फ़र सन 1378 में
वालिदा माजिदा इस दुनिया से रुखसत हो। अमीर अहले सुन्नत की कोई 2 किताबों के नाम बताएं। फैज़ान सुन्नत और नमाज का हकाम। अमीर अहले सुन्नत ने पहला हज किस सन में किया? 1400 हिजरी में पहली बार अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ने हज किया। अमीर अहले सुन्नत के मुर्शिद करीम का नाम क्या है? सैयद कुतुब मदीना ज़ियाउद्दीन मदनी अलैहि रहमा। जी, हमारे साथ मदनी कंप्यूटर हैं, इनके तमाम जवाब दुरुस्त हैं। जी, हमारे मदनी कंप्यूटर को तोहफा दिया जा रहा है, एक रिसाला दिया जा रहा है, एक इतर, एक तस्बीह, एक मिसवाक और एक तोहफा दिया जा रहा है। हमारे साथ एक मदनी मुन्ने हैं, हम नारे लगाते हैं। जी, मोहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुजतबा सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला सबसे आखिरी नबी, शाह हर दो सरा सबसे आखिरी नबी, नाराए अत्तार का सबसे आखिरी नबी, हर सहाबिये नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, 4 याराने नबी जन्नती जन्नती, हजरत सिद्दीक भी जन्नती जन्नती, उमर और उस्मान भी जन्नती जन्नती, फातिमा और अली जन्नती जन्नती, हसन हुसैन भी जन्नती जन्नती, वालिदैन नबी जन्नती जन्नती, सब सहाबियात भी जन्नती जन्नती, जन्नती 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 जन्नती। सिलसिला आप देख रहे थे हम और आप, सिलसिला आप देख रहे थे हम और आप मदनी चैनल के साथ। अगर ये सिलसिला आप अपनी पार्क में, ग्राउंड में, मार्केटों में करवाना चाहते हैं, हमारी मदनी चैनल की टीम से जरूर राब्ता करें। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे हाजरीन नाजरीन सबको खैर वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, सेहत वाली, नेकियों वाली तवील जिंदगी अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप आओ सीखें हम दीन